नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान् मंगलं भूतमोहि मंगलं कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसुमंगलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निरसनिदाता। कलश अमृत भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित कलश अमृतનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં મોક્ષ અધિકારનો છેલ્લો કળશ સળંગ કળશ 192 અને મોક્ષ અધિકારનો કળશ 13 એનો સ્વાધ્યાય આજે આપણે કરીએ છીએ। સમયસારમાં આ કળશની પહેલા ઉपोद्घातમાં એમ કહ્યું કે હવે મોક્ષ અધિકાર પૂર્ણ કરતા તેના અંત મંગળ રૂપે પૂર્ણ જ્ઞાનના મહિમાનું સર્વથા શુદ્ધ થયેલા આત્મદ્રવ્યના મહિમાનું કળશ રૂપ કાવ્ય કહે છે। મોક્ષ અધિકારમાં કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાનની બધી ગાથાઓ પૂરી થયા પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને 5 કળશની રચના કરી અને એમાં આ છેલ્લો 5મો કળશ છે એને અંત મંગળ રૂપે કહેવામાં આવ્યો। એટલે એમાં એ વાત કરી કે સર્વથા શુદ્ધ થયેલા આત્મદ્રવ્યના મહિમાનું કાવ્ય કહેવામાં આવ્યું, એનો મહિમા કરવામાં આવ્યો। શ્લોકાર્થમાં કહે છે કે કર્મબંધના છેદથી અતુલ અક્ષય અવિનાશી મોક્ષને અનુભવતું નિત્ય ઉદ્યોતવાળી જેનો પ્રકાશ નિત્ય છે એવી સહજ અવસ્થા જેની ખીલી નીકળી છે એવું એકાંત શુદ્ધ એટલે કે કર્મનો મેલ નહીં રહેવાથી જે અત્યંત શુદ્ધ થયું છે એવું અને એકાકાર એક જ્ઞાન માત્ર આકારે પરિણમેલા બીજો કોઈ આકાર નહીં એવા નિજ રસની અતિશયતાથી જે અત્યંત ગંભીર અને ધીર છે એવું આ પૂર્ણ જ્ઞાન જળહળી ઉઠ્યું એટલે કે સર્વથા શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય જાજ્વલ્યમાન પ્રગટ થયું, પોતાના અચળ મહિમામાં લીન થયું। પોતે ભગવાન આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવે પોતાની અંદર જ એ અચળ સ્થિતિમાં સ્થિત થયો। તો કળશ અમૃતમાં પંડિત રાજમલજીએ ખંડાનભાઈ સહિત જે અર્થ કર્યો છે તે આપણે લઈએ। તે પહેલા ભાવાર્થ લઈએ। અહીંયા ભાવાર્થમાં એમ કહે છે કે કર્મનો નાશ કરી મોક્ષને અનુભવતું પોતાની સ્વાભાવિક અવસ્થારૂપ અત્યંત શુદ્ધ સમસ્ત જ્ઞેય આકારોને ગૌણ કરતું અત્યંત ગંભીર જેનો પાર નથી એવું અને ધીર આકુળતા વિનાનું એવું પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ દેદીપ્યમાન થયું, પોતાના મહિમામાં લીન થયું। કળશ અમૃતમાં પંડિત રાજમલજી ખંડાનભાઈ સહિત અર્થમાં કહે છે કે એ પ્રમાણે જે કહ્યું છે તે એટલે કે અગાઉ કળશમાં જે વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો જીવ જે રીતે જ્ઞાન ભાવે પરિણમી જાય છે તેનું, તો એ રીતે કહે છે કે એ પ્રમાણે જે કહ્યું છે તે સમસ્ત કર્મમળ કલંકનો વિનાશ થતા
જીવ દ્રવ્ય જેવું હતું, અનંત ગુણે બિરાજમાન જેવું હતું તેવું પ્રગટ થયું. કેવું પ્રગટ થયું? તો કહે છે કે જીવની જે નિકર્મરૂપ અવસ્થા, જીવની કર્મ રહિત અવસ્થા, કોઈ પ્રકારના કર્મ ન હોય, એટલે કે જીવની ખરેખરી મૂળભૂત સાચી અવસ્થા. આ કર્મની તો ઉપાધિ હતી, એ કઈ જીવની અવસ્થા ન હતી. એ કર્મની ઉપાધિ રહિત થયું ત્યારે એ જીવની ખરેખરી સાચી જે અવસ્થા એ પ્રગટ થઈ. એટલે જીવની જે નિકર્મરૂપ અવસ્થા, તે અવસ્થારૂપ પરિણમતું થકું એ જીવ દ્રવ્ય પોતે સર્વ કર્મમળનો કલંકનો નાશ થતા, સર્વ કર્મમળ કલંકનો નાશ થતા, વિનાશ થતા, પૂર્ણપણે એનો નાશ થતા, કર્મથી રહિત થયું એવું શુદ્ધ પોતે પરિણમ્યું, એવી અવસ્થા રૂપે પોતે પરિણમ્યું. અને પછી કહે છે કે તે અવસ્થારૂપ પરિણમતું થકું એ અનંત ગુણે બિરાજમાન છે. અને પછી આ જે દશા છે એને મોક્ષની દશા કહી. એટલે પછી કહે છે કે કેવો છે મોક્ષ? કેવો છે મોક્ષ? તો કહે છે આગામી અનંત કાળ પર્યંત અવિનશ્વર છે. એટલે કે આ મોક્ષની પર્યાય એક પછી એક એવી ને એવી થયા જ કરે છે. હવે એ ફરીને કર્મ સહિત અવસ્થા થવાની નથી. એટલે કે આ અવસ્થા આગામી અનંત કાળ પર્યંત અવિનશ્વર છે, ઉપમા રહિત છે, એને કોઈની ઉપમા આપી શકાય નહીં એવી આ મોક્ષની દશા છે. શા કારણથી આ પ્રગટ થયું? જીવ દ્રવ્ય આવું અનંત ગુણે બિરાજમાન અવિનશ્વર દશામાં, મોક્ષની દશામાં એ પ્રગટ થયો છે. જીવ તો એ શા કારણથી એવી દશા એને પ્રાપ્ત થઈ? તો એમાં કહે છે કે જ્ઞાનાવરણ આદિ 8 કર્મના મૂળ સત્તાથી નાશ દ્વારા એવી દશા પ્રાપ્ત થઈ છે. કેવું છે શુદ્ધ જ્ઞાન અર્થાત શુદ્ધ જીવ દ્રવ્ય કેવું છે? તો કે શાશ્વત પ્રકાશથી પ્રગટ થયું છે. અનંત ગુણે બિરાજમાન શુદ્ધ જીવ દ્રવ્ય, જેને એવો શાશ્વત પ્રકાશ, અનંત ગુણનો શાશ્વત પ્રકાશ છે, એવું એ જીવ દ્રવ્ય છે. અને એવું જ એ પ્રગટ થયું છે. વળી કેવું છે? તો સર્વથા પ્રકારે શુદ્ધ છે. વળી કેવું છે? તો અનંત ગુણે બિરાજમાન એવું છે. સર્વકાળ શાશ્વત છે. અનંત ગુણે બિરાજમાન છે અને અનંત ગુણ તો સર્વકાળે રહ્યા છે. શા કારણથી એમ? તો કે છે કે એક રૂપ થયેલા અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્યના અતિશયના કારણે, એટલે કે એ પૂર્ણપણે એવા ચતુષ્ટય પ્રગટ થયા છે એના કારણે, અને એ શાશ્વત છે. વળી કેવું છે? તો પોતાના નિષ્કંપ પ્રતાપમાં મગ્ન રૂપ છે. કોઈ કંપન નથી, આત્મપ્રદેશોનું કોઈ કંપન નથી. કર્મની ઉપાધિ એને કારણે જીવ વિભાવ ભાવે થતો હતો, શુભાશુભ ભાવે થતો હતો, માટે કંપન હતું. હવે એ બધું ચાલ્યું ગયું છે, એ રહ્યું નથી. એટલે પૂર્ણ નિષ્કંપ દશામાં આ જીવ દ્રવ્ય પોતે પ્રગટ થયું છે. પોતાના સ્વરૂપમાં મગ્ન રૂપ છે, પોતાના નિષ્કંપ પ્રતાપમાં મગ્ન રૂપ છે. ભાવાર્થ આમ છે કે સકળ કર્મ ક્ષય લક્ષણ મોક્ષમાં, મોક્ષનું લક્ષણ એ જ છે કે સર્વ કર્મનો ક્ષય જેમાં હોય એ લક્ષણ દ્વારા મોક્ષ ખ્યાલમાં આવે છે. તો એવા સકળ કર્મ ક્ષય સહિત આ મોક્ષની જે દશા છે તે અદ્ભુત દશા છે. એમાં આત્મદ્રવ્ય સ્વને આધીન પ્રવર્તી રહ્યું છે. અન્યત્ર ચતુર્ગતિમાં જીવ પરાધીન છે, જ્યારે આ મોક્ષમાં આત્મદ્રવ્ય સંપૂર્ણપણે સ્વાધીન છે. આવું મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. અને એવી દશા જીવની સર્વ કર્મ મળનો ક્ષય થતા થાય છે.
તો એ રીતે આ 192મો કળશ છે, મોક્ષ અધિકારનો છેલ્લો કળશ છે. એની પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, પાના નંબર 71, પ્રવચન નંબર 213 પહેલેથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ આપણને સમજાવે છે. कलश टीका चलती है, मोक्ष अधिकार की छल्ला कलश है. मोक्ष 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 की व्याख्या करेगा. बंध छेदात कलयत अतुलम मोक्षम अक्षयम एतत् नित्योदत सुटित सहज अवस्था एकांत शुद्धम एकाकार स्वरस भरतो अत्यंत गंभीर धीरम पूर्णम ज्ञानम ज्वलतिम अचले स्वश दिनम महिमनि. ये तत्पूर्ण ज्ञानम ज्वलति क्या कहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा अंदर तो ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप है. उसका मूल असली स्वरूप ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप. ये जिसकी प्रकट दिशा में पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो और चार गति परिपूर्ण से रहित हो, उसका नाम मोक्ष कहते हैं. मोक्ष ये आत्मा का अतीन्द्रिय शुद्ध परिणाम है. तो उसका कारण भी अतीन्द्रिय शुद्ध परिणाम होना चाहिए. समझ में आया? मोक्ष कौन है? कहते ये आया नहीं वो. ये तत्व पूर्ण ज्ञान ज्वलित, जिस प्रकार कहा है पूर्ण समझ कर्म कलंक विनाश होने से जीव द्रव्य जैसा था है. सूक्ष्म बात उसने कहा है कि जीव जो अंदर आत्मा है ये तो जैसा था ऐसा प्रकट हुआ. था कैसा कि अनंत आनंद अनंत ज्ञान अनंत अंदिंद्री शांति स्वच्छता की पिंड पूंज है आत्मा. ये आत्मा जैसा था, જેમ લીંડી પીપર में 64 पैरी तिखास थी तो घूंटी बाहर आती है प्रकट. ये प्राप्त नहीं प्राप्ति. एम जैसा था 64 पैरी જેમને हमें तिखास थी લીંડી पीपर, तो घूटने से बाहर 64 पैरी 64 को रुपयों को 16 ना को प्रकट होती है. एम जीव द्रव्य जैसा था है. मोक्ष की व्याख्या करते हैं. हाँ, भगवान आत्मा देह से यहाँ तो माटी जड़ है दूर, उसके जानने वाला नीचे से तो ऐसा है, जरी सूक्ष्म पड़ेगा. अपनी पर्याय जो है वर्तमान ज्ञान की, ये ज्ञान की पर्याय पर को जानते हैं, ये तो असद्बोध नहीं से कहने में आया है. खरेखर तो अपना ज्ञान की पर्याय में पद जानने में आता है, ये व्यवहार है. अपनी पर्याय में अपना ज्ञान होता है, ये नीचे सब जानने में आता है. जिसकी सत्ता में, सत्ता नाम जिसकी पर्याय अवस्था हालत वर्तमान, तो जीव द्रव्य की व्याख्या थे, पर वर्तमान में पर्याय की ज्ञान की अवस्था है, उसमें आज जानने में आता है. ये खरेखर ये जानने में नहीं आता. जानने में तो अपनी ज्ञान की वर्तमान अवस्था की ताकत जानने में आता है. सूक्ष्म है भाई, धर्म बहुत सूक्ष्म है.
लोग को एक कल्प्या से बाहर से दया दान भक्ति ये सब कोई धर्म वर्म नहीं है। धर्म अंतरनी अपूर्व कोई चीज है। तो कहते हैं कि एक समय में अपनी जी दशा वर्तमान प्रगट है, ये दशा में जानने में आता है, ये तो कहना में व्यवहार है। निश्चय से तो अपनी ज्ञान की पर्याय अपने से जानने की प्रकट होती है, उसको ही जानते हैं। क्योंकि जिसमें तन्मय होकर जाना ही जानना कहने में आता है। तो पर को जानना या अपने ज्ञान में तन्मय होकर तो जानते नहीं। सुख भाई जीणी बातों से बदी। अब अंदर द्रव्य आत्मद्रव्य जैसा था ऐसा प्रकट हुआ एम कहते ने। तो હવે यहाँ कहना है कि उसकी ये वर्तमान पर्याय में ज्ञान की दशा पर को जानते थे, ये खरेखर नहीं, क्योंकि पर में तन्मय नहीं, माटे खरेखर पर को नहीं जानते। तो पर का संबंधी का ज्ञान अपनी पर्याय में अपने से होता है, उसको जानते हैं। આવું જણું છે। હવે તો બીજું કેવું છે कहना है कि जी एक समय की ज्ञान वर्तमान दिशा पर को जानते हैं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उसमें तन्मय में एक में तो है नहीं। तो एक में हुए बिना उसको जाने क्या कैसे कहने में आता है भाई। जीणी बात है प्रभु। आए तो भगवान तरीके बोलाते, आत्मा अंदर भगवान स्वरूपी है, उसको इन्हें खबर नहीं। यहाँ तो एक समय की वर्तमान जानन है ना, जानन दिशा प्रकट, ये खरेखर तो उसको ज्ञान की पर्याय कोई जानते हैं। ये पण हजी पर्याय बुद्धि हुई। जीणी बात है भाई। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ हुआ, वो कहाँ से हुआ? ये अंदर में है, उसमें से हुआ। जैसा था इनका है अंदर में, यानी शक्ति अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति आदि का सागर भगवान अंदर है। तो जैसा था ऐसा प्रथम पहले अपनी पर्याय में पर जानता नहीं, पर अपने को जानते हैं। पर एक समय की पर्याय बुद्धि तो है, वो एक समय की अवस्था जैसा था इसका जाने। जीणी बात है भाई, या तो धर्म की बात है। जो एक समय की दशा जो वर्तमान चलती है, ये पर को नहीं जानते। खरेखर तो अपनी पर्याय मां तन्मय है तो उसको जानते हैं, पर मां तन्मय नहीं। हवे एक समय की पर्याय अपने को जानते हैं पर्याय, तब लग तो ये उसकी पर्याय बुद्धि, अंश बुद्धि, वर्तमान बुद्धि हुई। अरे वो इतना जाने तारे, पर को जाने, ये तो बड़ी कई बात रहेगी। समझ में आया बात भाई। धर्म ऐसी चीज, सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव वितराग परमेश्वर है, जो धर्म का ये अलौकिक चीज है। અને ये बिना जन्म मरण का अंत कभी आया? जन्म मरण करते 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 अनंत काल से रुलते परिभ्रमण करे थे। यहाँ कहना था मोक्ष की बात यहाँ चलती है, पर पहले यहाँ वर्तमान पर्याय जो मुक्त स्वरूप जीव द्रव्य जैसा था, ऐसा वर्तमान पर्याय में जानने में जब आता है, तब तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है।
समझ में आया? આવી વાત છે. શું ભાઈ ક્યાં પૈસા પૈસા માં ક્યાંય મળે એવું નથી. કરોડ ફરોડમાં ધૂળમાં બધી ધૂળ છે. પૈસા 5 કરોડ ને 10 કરોડ ને બધું રૂપિયા છે. माटी है तो धूल है, आए धूल माटी आ क्या है चीज? राख था तो राख होगी, मसाल नहीं. अंदर भगवान ये आत्मा है तो आनंद प्रभु सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद का भंडार था है. इसको पहले पर्याय में जानने में आया. हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है कि मोक्ष है पूर्ण एकांत शुद्ध कहेगा. एकांत शुद्ध છે ને, એકાંત શુદ્ધ, પછી સર્વથા પ્રકાર શુદ્ધ. જે મોક્ષ है तो अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान आदि शांति थी पूर्ण शुद्ध है मोक्ष. અને संसार है विकार दशा से परिपूर्ण विकार है. ये दुखी है प्राणी. चाहे तो राजा हो के चाहे तो अब्जोपति, पण पैसा ना धनी मालिक होता है तो ये दुखी है, अज्ञानी है, मूर्ख है. तो जैसा आत्मा था ऐसा मोक्ष में प्रकट हुआ. उसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान पर्याय में जैसा था ऐसा अंतर अनुभव में प्रतीत हुआ. तब तो मोक्ष जो परिपूर्ण शुद्ध है उसका उपाय अपूर्ण शुद्धता की पर्याय प्रकट हुई है. शुरुआत हुई. જેની વાત ભગવાન અનંત કાળથી રખડીને મરી ગયો છે. 84 ના અવતાર કરીને કીડા કાગરા કૂતરા એવો આનંદ ભાવ કર્યા. 84 લાખ યોની એક યોની મેં આનંદ ભાવ કર્યા. પ્રભુ એને થાક લાગ્યો નથી, એને જોતો નથી કે મેં કોણ હું અંદર. आई तो एक समय की वर्तमान दशा में पर को जानना भी नहीं है. ये तो अपने को जानते हैं क्योंकि परमात्मय नहीं. केवल ज्ञानी लोकालों को जानते हैं ऐसा कहना ये तो असद्भुत व्यवहार नहीं है. क्योंकि एमा तन्मय होता नहीं, ते रूपे होता नहीं. तो पर्याय रूपे ते रूपे होता है उसको ये जानते हैं. ऐसे यहाँ ज्ञानी नीचे वर्तमान दशा में पर को तन्मय होकर जानते नहीं. माटी ते संबंधी का अपना ज्ञान अपने में तन्मय होकर जानते हैं तो उसका नाम पर्याय का जानने में कहने में आया. હવે અહીં તો इसी आगे ले जाना है. देवलाल जी आई बात है भाई. हाँ हाँ, अरे मनुष्यपणों मरु ने जो आत्म तत्व आत्मज्ञान क्या चीज है उसकी खबर नहीं किया. 4 गति में दुखी थे रखड़े थे. हाँ हाँ, यहाँ तो कहते हैं कि जैसा था ऐसा प्रकट हुआ. मोक्ष की व्याख्या करी. जैसा था अंदर में अनंत आनंद मुक्त अनंत शांति शांति शक्ति. ये जैसा था ऐसा वर्तमान दशा में पूर्ण जैसा था पूर्ण पर्याय में प्रकट हुआ. उसका नाम मोक्ष. अरे यहाँ तो मोक्ष का कारण पहले बताना है. हाँ हाँ हाँ, कि जैसा था जेवा है अनंत ज्ञान अनंत आनंद उसमें है प्रभु. जमी पीपर के दाने में 64 पोरी तिखास अंदर भरी. तिखास हिंदी में चरपराई कहते हैं, अपने तिखास कहते हैं. अंदर भरी है 64 परी रुपयो पूर्ण. तो जैसा था ऐसा 64 परी परी में प्रकट हुई घुटने से. ऐसा जैसा था कैसा था
કે પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वस्थता थी भरपूर भगवान जैसा था ऐसा है। इसका वर्तमान पर्याय में पर को जानने में जो पर्याय की ताकत मानी है, पर वो पर्याय में स्व का जानना की ताकत है, ऐसे जानकर ये पर्याय स्व को टिकाऊ को जाने, तब उसको मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हुई। पूर्ण शुद्ध पर्याय आत्मा का शुद्ध पूर्ण दशा है, तो शुद्ध परिणाम का कारण भी आत्मा का शुद्ध परिणाम होना चाहिए। समझ में आया? झीणी વાત છે ભગવાન એને કદી સાંભળી નથી, કદી કરી નથી। બાળપણ ખેલ में खोया, बालपण खेल ने रमतों में, युवानी स्त्री में मोया, वृद्धावस्थ देख के रोया, वृद्धावस्थ थी देखे पण आप तत्व अंदर भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर जैसा था ऐसा प्रकट किया, जैसा था ऐसा प्रकट हुआ, उसका नाम मोक्ष। है दूसरी बात कि मोक्ष के पूर्ण ये आत्मा तो जैसा था ऐसा शुद्ध पूर्ण दिशा न मोक्ष, तो उसका कारण भी आत्मा का शुद्ध परिणाम होना चाहिए। होना चाहिए એટલે है। शुद्ध वस्तु जैसी थे, परिपूर्ण वस्तु भरी है, उसकी वर्तमान पर्याय दशा में अंदर में जैसा था ऐसी प्रतीति अनुभव में हुआ, तब तो यानी मोक्ष का मार्ग प्रकट हुआ। मोक्ष जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, पूर्ण पवित्र अनंत आनंद की दशा है, उसका अपूर्ण शुद्ध परिणाम शुद्ध स्वभाव का भान में उत्पन्न जो हुआ, ये पूर्ण शुद्ध परिणाम का कारण है। अरे आई बात हो जो मारे गाँव भाई અત્યારે સાંભળવું મુશ્કેલ પડે છે। બહારથી ધમ જાણ્યા, બહારથી ધર્મ થઈ જશે। धर्म तो अंदर स्वभाव पड़ो तेरा में है मेरा। तो कहते हैं कि जैसा था, અહીં શબ્દ આવ્યો ને, जिस प्रकार कहा कि समस्त कर्म और कर्म का विनाश होने से, शब्द तो पूर्ण ज्ञान है, પણ કર્મનો નાશ હોવાથી કથન કર્યું, કેમ કે પેલું કઈક મલિન था ये बताने को। समस्त कर्म और कर्म का समस्त हो, कोई पण मोक्ष में एक राग भी नहीं रहते हैं कि जिससे फरीने अवतार करना पड़े। जो छेना होता है, छेना सेकने से डालिया हो जाता है ना, डालिया क्या कहता है तुम्हारे हैं? चना, ये चना पका हुआ ये फरीने उगे नहीं, कच्चा है तब उगे बोए तो। एम भगवान आत्मा पक्का हो गया, अपना आत्मा में अज्ञान को सेकने नाश करने से और पूर्ण पर्याय को प्रकट किया दिशा को, ये वे फिर संसार में अवतार धारण करते नहीं। अवतार धारण करना ही तो कलंक है। अंदर भगवान सच्चिदानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद में अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर पड़ा है अंदर, क्या जोवे कोई भी जोयू नहीं। एक चीज नहीं, वर्तमान में परिणामी वस्तु टिकाव जैसी थे ऐसा प्रतीत में, ज्ञान में, अनुभव में आना, ये शुद्ध परिणाम है। ये शुद्ध परिणाम पूर्ण शुद्ध का कारण है। समझ में आया? एक तो समझू कठिन पड़े, ये करे कि भी સહેલામાં સહેલી ભાષાથી તો આવે છે, કરવું તો એને છે કે નહીં? હા હા, કોઈ કરી દે, હા હા, મદદ કરે તો એ ખોટી વાત છે। હા,
જીવ દ્રવ્ય હે, જીવ દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, અને ભગવાન આત્મ તત્વ. તત્વ કહો, દ્રવ્ય કહો, વસ્તુ કહો, પદાર્થ કહો, એ આત્મ દ્રવ્ય, આત્મ પદાર્થ, आत्म वस्तु, आत्म तत्व. जो वस्तु तिखाड़ी अविनाशी, कभी नई उत्पन्न हुई नहीं, नाश न होगा, ऐसा अंतर वस्तु जो है, जैसा था जैसा था आनंद, कैसा था आनंद गुण विराजमान. ये तो आनंद गुण विराजमान था. सूक्ष्म बात है प्रभु. अनंत शक्ति अंदर में है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ऐसे अनंत गुण विराजमान है. जैसा था वैसा प्रकट हुआ है, जैसा था ऐसा परिणमन में प्रकट हुआ. बाद में शक्ति में था, वो प्राप्त की प्राप्ति पर्याय में अंदर पहला कहा ने कि पर्याय को द्रव्य का प्रतीक अनुभव करने से उसका मोक्ष का मार्ग शुरू होता है. અને પૂર્ણ जब आश्रय हुआ, त्रिकाल का पूर्ण आश्रय हुआ, तो केवल ज्ञान में मोक्ष दशा होती है. तो ये मोक्ष दशा ना कारण में पहला तो आ कहा, समझ में आया कि कर्म का नाश करके એમ કહ્યું ને, निकलंक नाश करके जीव जैसा था आनंद गुण विराजमान वैसा प्रकट हुआ. कैसा प्रकट हुआ? मोक्ष कलयन. मोक्ष ની व्याख्या जीव की जो निष्कर्म रूप अवस्था, आ मोक्ष ની व्याख्या. ये राग वाली ने कर्म वाली दशा है, ये तो संसार में रखने की चीज है. कर्म ने राग विनानी निष्कर्म अवस्था, पूर्ण निष्कर्म अवस्था नासी से बात किया है. राग ने कर्म से रही निष्कर्म अवस्था, उसका नाम मोक्ष. અને કર્મ ને રાગની અવસ્થા, उसका नाम संसार. जीव की जो निष्कर्म अवस्था मोक्ष ની व्याख्या करे છે. उस कलयन ये रूपे परिणम गया. कलयन છે ને, अनुभव हो गया, परिणमन થઈ ગયું. जैसी एनी मोक्ष अवस्था पूर्ण कर्म कलंक रहित, पूर्ण अशुद्धता से रहित, पूर्ण शुद्ध जैसा था, ऐसी अवस्था रूप परिणमन हुआ, पर्याय में दशा हुई, उसका नाम मोक्ष कहते हैं. समझ में आया? આવી વાત ભાઈ, મારું તો એવા છે. અત્યારે તો જો ને નાની નાની ઉંમરમાં કેટલા હાડફેલ થઈ જાય છે. 10-10 વર્ષની ઉંમર, 25-25 વર્ષની ઉંમર, હાડફેલ કઈ ખ્યાલ નહીં, 1 સેકન્ડમાં દેહ ઉડી જાય, ફટ. સ્થિતિ પૂરી થઈ જાય તો દેહ છૂટી જાય, ફરાક દેહ. संयोगी चीज है. आ तो संयोगी चीज उसकी स्थिति छूटते हैं. आ तो अपना स्वरूप जैसा था ऐसा प्रकट हुआ, तो राग ने शरीर ने कर्म उसके कारण छूट गया. उसका नाम मोक्ष कहने में आता है. जिसमें अनंत अतीन्द्रिय आनंद है, जिसमें अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान है. क्यों कि अनंत गुण विराजमान था, क्यों तूने हैं, ये प्रकट हुआ. निष्कर्म अवस्था विराजमान वैसा प्रकट हुआ. तो क्या प्रकट हुआ कि जीव की जो निष्कर्म अवस्था, उसके अवस्था रूप परिणमन हुआ. अरे आवा शब्द છે. પૂર્ણ દશા, અનંત અનંત આનંદ. સિઝનની દશાનું વર્ણન છે ને, બેન આવશે મારા વાંચન. બેને સિઝન નથી લખ્યું ને, એનું વર્ણન કર્યું છે ને. કે બેને એમ કે સિઝનની વ્યાખ્યા શાંતિ 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 શાંતિ, પૂર્ણ શાંતિ.
બેન વિશ્વાસ બાળ બ્રહ્મચારી બાઈ છે, હમણાં વંશાશી વ્યાખ્યાન પછી કારણ એનો એવો લાગ્યો છે, એવી ભાષા છે ને. બેનનું વાંચન થઈને તો ગાંડા પાગલ થઈ જાય છે કે ધર્મ ધર્મ રૂપે બીજું કઈ પૂજે નહીં એવું લખ્યું છે વિશારદભાઈ. ઓલા દુનિયામાં પાગલ થઈ જાય એ નહીં, આ દુનિયાના પાગલ એટલે અંદર માં કઈ બીજું સૂજે નહીં કઈ. આત્મા 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 આનંદ 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 શાંતિ વિભાવ से भिन्न એ શબ્દ લખ્યો છે. એક શબ્દ ટૂંકો मैंने લખ્યું છે વિભાવ થી ભિન્ન તેરી ચીજ છે ને વિભાવ નામ વિકાર, विकार नाम पुण्य ने पाप ना भाव, ये सब विकार ने विभाव है, उसके भगवान अंदर आत्मा भिन्न है. ये जैसी अवस्था शक्ति थी ऐसी निष्कर्म अवस्था परिणमन हुआ. જોયું? हाँ कलयन नोट परिणमन हुआ. अभ्यास किया, अनुभव कहो कलयन માં અભ્યાસ કહો, અનુભવ કહો, અવસ્થા કહો, सब एक अर्थ में. हाँ हाँ कलयन अवस्था परिणम हुआ. શું क्या किया कि जैसे लींडी पीपर 64 पैरी शक्ति से था अंदर, ये घूटने से बाहर आया. 64 पैरी એટલે પૂરણ શિખા बाहर प्रकट થઈ. એમ भगवान आत्मा में जયારે एक लींडी पेप जैसी जड़ चीज में पूर्ण तिखाज भरी है बाहर प्रकट होती है, सातों चैतन्य मार भगवान अंदर में पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान 64 पोरी 64 रुपये 64 पैसा पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान थी भरा पड़ा था. ये पर्याय में अनुभव में दशा में आ गया. ત્યાં ક્યાંય પૈસામાં ક્યાં સાંભળવાનું મળે એવું નથી. ત્યાં બધાને દુઃખી છે પૈસા વાળા બિચારા. શાસ્ત્ર તો પૈસા વાળાને ભિખારી કહે છે. ભિખારી ભીખ માગે છે, ભગવાન થઈને ભીખ માગે છે. પૈસા લાવો પૈસા લાવો પૈસા લાવો, બાયડી લાવો, છોકરા લાવો. આ બધું ભિખારી હે સારા. अनंत अनंत अंतर आनंद ने शांति पड़ी है तेरे में, तेरी लक्ष्मी अंदर में पड़ी है ना सच्चिदानंद प्रभु. ये लक्ष्मी को स्वामी करने उसका धनियों ने. हाँ 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 समझ में आया संजय भाई? आखिरी बात है दुनिया थी विरुद्ध है. हाँ पण प्रभु तारा आत्मा ना घर नहीं बात है नाथ. તું અંદર કોણ છો? અંદર દેહ માં આ તો માટી જ હરખા મહાન નિરાકું થઈને ઉડી જશે. હા 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 તું ઉડે નાશ થયો નથી. તું તો અવિનાશી છો, અનાદિ અનંત છો. है यानी उत्पत्ति नहीं है, उसका नाश नहीं है, उसकी प्रगट है. है कलयन प्रश्न कैसा है मोक्ष? अक्षयम आगामी अनंत का पर्यंत अविनेश्वर है. हा 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 जैसा वस्तु है आत्म तत्व अनंत आनंद आदि अविनेश्वर, ऐसी मोक्ष अवस्था पण पर्याय हुई, दशा हुई, पण हवे अविनेश्वर है नहीं. क्योंकि अविनेश्वर आत्मा है, उसकी दशा में से अनंत आनंद आदि पूर्ण प्रकट हुआ मोक्ष, तो यह अविनेश्वर है. ये पण अनंत का रहेगा. मोक्ष हुए पीछे कोई अवतार धारण करना पड़े. ये बात तो बड़ी खोटी खोटी. भेलतो ने भीड़ ने भगवान ने क्या हती. पोताना जहाँ स्वरूप में आनंद में पूर्ण दशा हो गई, उसका ज्ञान भी करते नहीं. ये ज्ञान तो अपनी पर्याय का करते हैं. अवतार नहीं करते. बापू मारगड़ा जुदा प्रभु. અત્યારે તો પ્રાણી જેવો નહીં, દુઃખી બિચારા, મોંઘવારી,
ગરીબ માણસો સાધારણને મળવું મુશ્કેલ પડે, પૈસા વાળાને ઘણું દેખાય, એ દુઃખી ને એ દુઃખી, રાજા દુઃખી, રાજ દુઃખી, શેઠ દુઃખી ને देव दुखी। सुखी एक संत જેને आत्मा का भान हुआ, हूँ आनंद आनंद कंद छू सचिदानंद प्रभु, उसका जिसको भान हुआ वो सुखी है जगत में। सुखिया जगत में संत दूरी जन दुखिया। આ બધા દુખ્યા ખરા સમજાય, સાચી વાત છે। હા તો કે છે મોક્ષ અવસ્થા કિસકો કહીએ કે આગામી અનંત કાળ સુધી રહેનારી અને અતુલ ઉપમા રહિત है। ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान है अंदर। ये जहाँ पर्याय में अनुभव करके, अंतर में अनुभव करके दशा में पूर्ण आनंद हुआ, इसकी उपमा क्या देना, किसकी उपमा देना कि भाई इंद्र ना सुख करता परमात्मा मोक्ष में आनंद गुणों सुख, तो इंद्र ना सुख तो जहर का सुख है, आत्मा का सुख तो अतीन्द्रिय सुख है। तो अतीन्द्रिय सुख ने कोई उपमा है नहीं। समझ में आया? अतुलम उपमा रहित है। किस कारण से? बंध छेदात, बंध ने मूल सत्ता से नाश के द्वारा। जेमी चीना ऊपर ना फूतरा छिर का नाश होता है, चीना पक्का पक्का होता है, पीछे वो उगते नहीं, मिठास आते हैं। ये मिठास आई कहाँ से? कच्चा चीना में मिठास नहीं थी, तोरास था, અને પક્કામાં मिठास आई कहाँ से आई? बाहर से आई? अंदर में मिठास पड़ी थी, वो बाहर आई। सेकने से बाहर आती है, लकड़ा को सेके, कोलसा को सेके तो बाहर आनी चाहिए। क्या उनमें है क्या? चना में मिठास पड़ी है तो सेकने से डालिया कहते हैं तुम्हारे चना सीजा ये मिठास जेम है, एम आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की मिठास है। ये मिठास को भी चना तो जानते नहीं है, अने चना की मिठास का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की चना की मिठास का नहीं। ये समय का ये पर्याय में ऐसा ज्ञान अपने कारण से उत्पन्न हुआ है। चना में मिठास है ऐसा ज्ञान हो, ये ज्ञान में तन्मय अपना ज्ञान है। तो जेमा ज्ञान में मिठास का ज्ञान है, ये अनंत ज्ञान नहीं मिठास में जब लग गया ज्ञान, अनंत आनंद अंदर भरा है, उसमें मिठास लग गई अंदर में, तो पर्याय में दशा में पूर्ण आनंद हो जाता है। उसका पछी आगामी का कोई नाश होता नहीं है। क्यों कि आठ कर्म એટલે कर्म है ना, राग द्वेष पुण्य पाप ये भाव कर्म है, जड़ कर्म आठ से ज्ञान शब्दों नाश થાય છે। किस कारण से? मूल सत्ता के नाशों में। कैसा है शुद्ध ज्ञान? नित्य ज्योत स्फुटित सहज अवस्था, शाश्वत प्रकाश से प्रकट हुआ है। जीवो आत्मा अविनाशी शाश्वत है, उसकी शक्तियां अनंत आनंद आदि शाश्वत है। ऐसी पर्याय में शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। वस्तु शाश्वत, गुण शाश्वत, पर्याय अवस्था शाश्वत, और द्रव्य गुण शाश्वत અને पर्याय અસ્થિરતાની અશાશ્વત थी संसाરની रागदेशनी। तो जैसा द्रव्य शाश्वत वस्तु यानी शक्ति गुण आनंद आदि शाश्वत, ऐसी पर्याय शाश्वत हो गई। આવો ઉપદેશ કઈ જાતનો છે? આખે કોઈ દયા પાડવી, વ્રત કરવા, આ દેશની સેવા કરવી, કોણ કરે ભગવાન? तेरा शरीर में रोग आता है तो तेरी मटाने शक्ति नहीं, तो जड़ है, जड़ आता है।
हाँ, तो पर क्या तुम मटाड़ी सकते हैं? अभिमान है ज्ञान। हाँ, यहाँ तो अपनी मटाड़ी सकते हैं, ये कहा न। नित्य उद्योत शाश्वत प्रकाश स्फुटित, जो स्फुटित है क्या नहीं होता ना, स्फुटित प्रकट हुआ, जैसा अंदर में आनंद हुआ ऐसा प्रकट हुआ। कैसा है ज्ञान? प्रकट हुआ नित्य और सहज अवस्था, अनंत गुण विराजमान सूर्य जिसको ऐसा। अवस्था नाम पर्याय दशा ऐसी है, जैसा सहज शक्ति रूप टिकाव प्रभु है, ऐसा अनुभव करके आनंद का वेदन करके आत्मज्ञान करते करते फिर करते करते पूर्ण दशा प्रकट हो गई। ये पूर्ण शाश्वत दशा है। आनंद गुण विराजमान सुजीव द्रव्य जिसको ऐसा है। ये जीव द्रव्य अनंत गुण है, ऐसा पर्याय भी अनंत शुद्ध अनंत का रहेगी। संसार का नाश और मोक्ष की उत्पत्ति आत्मद्रव्य का त्रिकाली ध्रुव। क्या कहते हैं? तो विज्ञान का विज्ञान है, अंतर आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना कभी जन्म मरण का अंत आएगा नहीं। 84 अवतार में रखड़ी रखड़ी गाचना गाणी ने पेटे पिलाई मरी गयो थे अनंत का। यहाँ कहते हैं कि पोती इतना नित्य प्रकट हुआ, सहज अनंत गुण थी अवस्था विराजमान है। सहज अवस्था में शब्द है, अवस्था नो अर्थ अवस्था न लेना। अनंत गुण विरा अवस्था निश्चय है, सहज निश्चय से अनंत गुण है, बस एम लेना, अवस्था नहीं। अवस्था चौकसपण है। कैसा है? एकांत शुद्ध। હવે અહીંયા आत्मा या आनंद एकांत शुद्ध था अंदर, ऐसी दशा प्रकट हुई। अंतर अनुभव करते करते आत्मज्ञान में लीन होते होते तो ये पर्याय ये अवस्था ऐसी हुई, एकांत शुद्ध, सर्वथा शुद्ध, कथनचित शुद्ध नहीं कथनचित अशुद्ध, ऐसे नहीं। सिद्ध को भी दुखी कहो कि दुखी है नहीं, पूर्ण आनंद स्वरूप है। पूर्ण आनंद हुआ, उससे जन्म मरण पीछे है नहीं। एकांत शुद्ध, सर्वथा प्रकार शुद्ध है। परमात्मा प्रकाश में क्या है? थोड़ा इंद्रिय का सुख भगवान को नहीं। परमात्मा प्रकाश में क्या है? इंद्रियों का सुख क्या है? तो इंद्रिय का कल्पना है जड़ की, पर मैं ये इंद्रिय का सुख नहीं इतना क्या लिया है थोड़ा परमात्मा प्रकाश में। पर यहाँ तो एकांत परिपूर्ण शुद्ध सुखी है। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान अंदर, अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद का सागर नाथ अंदर विराजमान, उसका अंतर में अनुभव करते करते, उसके अनुसरण करते करते दशा में जहाँ पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, ये नित्य एकांत शुद्ध है। कैसा है? अत्यंत गंभीर धीरम, अनंत गुण विराजमान गंभीर। क्या कहना के? तो फोड़ा होता ने गुमड़ा गुमड़ा फोड़ा, गंभीर गुमड़ो बहु पाती जा खड़ो 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 वाट पण करे नी अंदर खड़ो। आत्मा का आनंद जहाँ प्रकट हुआ अत्यंत गंभीर, इतले ये आनंद की इतनी गंभीरता जिसकी पार नहीं। ऐसा आनंद अंदर पराई है, पर उसका दृष्टि ने सम्यक दर्शन ज्ञान ने अनुभव करते करते प्रकट होता है।
अनंत अनंत गंभीर, जैनी एक समय की दशा पूर्ण मोक्ष, उसका पार नहीं, अक्षय अनंत गंभीर है। अक्षय अनंत, जहाँ चारित्र को भी अक्षय अनंत कहा, कारण को, तो पूर्ण दिशा का अक्षय अनंत की मर्यादा क्या कहना कहते हैं, अत्यंत गंभीर है भाई। ये मोक्ष का मार्ग, ये धर्म कोई अलौकिक चीज है, ये बाहर से कोई प्राप्त नहीं होती, अंतर आत्मा में पड़ा है। अंदर में ध्यान करने से, अंतर का आनंद का ध्यान करने से आनंद में धर्म होता है। आए तो थोड़ा दया पालन, पैसा थोड़ा खर्चे के धर्म हो गया। जो धूड़ में धर्म नहीं, तारा करोड़ 2 करोड़ अब खर्च ने, ये तो धूड़ है, माटी है, माटी में तेरा धर्म कैसा आया। यहाँ तो कहते हैं अत्यंत गंभीर ने धीर, 2 अर्थ वापरा, अनंत गुण विराजमान ऐसा, અને ધીરું છે એટલે સરોકાર રહેનારું છે, શાશ્વત રહેનારું છે। मोक्ष से आत्मानो संसार का नाश होकर अपना अनुभव करते करते केवल ज्ञान हुआ परमात्मा शाश्वत साथ सुख है। अच्छा, किस कारण से? एकाकार स्वरस भरत, एकाकार क्या क्या, एक रूप हुई, अनंत अनंत आनंद एक रूप दिशा हो गई। जैसे विकारी दशा थी तो अनेक रूप थी, या मोक्ष दशा अंतर हुई, अंतर आत्मा एक रूप आनंद है, दशा में एक रूप आनंद पूर्ण प्रकट हुआ, अनेकपना नाश हो गया। ऐसा एकाकार, स्वर्स आनंद ज्ञान, आनंद दर्शन, आनंद सुख, आनंद वीर्य, एना अतिशय के कारण, विशेष के कारण सुखी से। कैसा है? स्वस्थ अचल महिम निलिनम, अपने प्रताप में मग्न रूप है। इस प्रकार के सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष में आत्मद्रय स्वाधीन है, अन्यत्र चतुर्गति जीव पराधीन है। चाहे तो नरक में जाओ, पशु में, मनुष्य में, देव सब पराधीन। मोक्ष दिशा सब मोक्ष का सर्वा कहा लो, ये पूरा हुआ मोक्ष। એ રીતે કળશ 192 વિસ્તાર પૂરો થયો અને એ રીતે મોક્ષ અધિકાર અહીંયા પૂરો થાય છે। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ।